अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसमें वी विल बी स्टार्टिंग अवर रिग्रेशंस। आज की आउटलाइन के अंदर आई विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट। आपकी वोल्ड्रिज की बुक में भी चैप्टर 1 के अंदर दीज थिंग्स आर कवर्ड इन ग्रेट डिटेल। आई विल बी जस्ट समराइजिंग दोज कंसेप्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू बाय लुकिंग एट द डेटा. We will be today we will also see how to generate variables using the gen command. I've observed कि हम in the last class अपने पिछले classes में we are usingegen command a lot. हमने gen command पे इतनी spotlight नहीं डाली and it deserves a lot of attention because gen command is a very generic command and this helps us a lot when we have to generate some variables as per our need.Egen command is very helpful but sometimes it can't help us because of our needs, customers needs. So we will be seeing how to generate the numerical variables. We will be seeing how to generate the string variables, uh, and then we'll start discussing we will start to see the relationships between the variables by using correlation, covariance, scatter plot, and finally the regression. We will see how can we use this scatter plot to see the association between the variables. You will also learn how to create this scatter plot in Stata. Don't worry, there will be a separate session on data visualization as well. I've kept it for our last sessions, but for the purpose of regression, we will be doing it today. We will also see the correlation and covariance, and we will see how these covariance and correlation can help us in understanding the relationship between the variables. We will also transform the variables for regression. आपके chapter 2 के अंदर, if you see, you have seen how you are doing, you are taking the log of the variables. We will also be doing those things as well. And in the last, we will do some regressions and we will try to interpret it. And then we will try to export those regression tables into Word form or the Excel form or the PDF form. So that's the agendas for today's lab. If you have any questions, let me know. No questions? Okay. Then Bismillahirrahmanirrahim. So guys, जब भी डेटा सेट आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी जो है वो यू नीड टू एनालाइज इट फर्स्ट कि वो डेटा सेट किस टाइप का है, जिसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों ने वेरिएबल सबसे पहले डेटा को देखना है कि जो पहली रो है व्हाट इज दैट टेलिंग यू. अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसी चीज़ में ही आपके टाइप ऑफ डेटा सेट भी कवर हो जाते हैं, लेकिन आई जस्ट थॉट कि हम लोग इसको थोड़ा सा और टच बेस कर लें इसके साथ, और उसके साथ हम थोड़ा सा और इस पर हम क्लैरिटी लेके आ जाएं. सो सबसे पहले हम करते हैं बिस्मिल्लाह. Bismillahirrahmanirrahim, and let me zoom it first. Thank you, Daniel. Then I'll be writing my name, Raza Mustafa. This is practice. This is tutorial number 5. Tutorial number 5 and clear all. ये स्टेटा की जैसे हमारी बिस्मिल्लाह हमारे 786 थी, वैसे स्टेटा की जो है वो क्लियर ऑल है. ठीक है, तो हम क्लियर ऑल करते हैं स्टेटा में. और इससे पहले कि हम आगे चलें, हम इसको हम पहले सेव कर लेते हैं. Again, I need this path, so I'm copying it for my time over here. Left 5, do file, tutorial 5. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और हम काम करते हैं. लेट मी क्रिएट अ ग्लोबल फर्स्ट. ठीक है, ग्लोबल. और ग्लोबल में हम नाम रखते हैं इसे आउटपुट का, यानी उसका नाम ने आउटपुट रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं इसे पाथ में दे रहा हूँ. ठीक है, और इस पाथ को जो है हम लोग साथ में अपनी पुरानी फाइल भी खोल लूँ, मैंने अभी ओपन की थी आप सबके लिए, क्योंकि मेरा पाथ आपसे फर्क है थोड़ा सा, तो आई डोंट वांट कि मेरे पाथ की वजह से आप लोग समझ ना सको कि हो क्या रहा है. तो दिस शुड बी ड्रॉप बॉक्स एंड दिस. ओके, ठीक है. तो ये हमारा पाथ आ गया. हमारा पाथ हमने मैंने इसको फिलहाल भी एक ग्लोबल में सेव कर लिया. ठीक है, और creating global to export regression and summary tables in our
assembly tables in our data, assembly tables into to Word, Excel and PDF form. अच्छा जी, let's start with discussing um, the different types of data set. सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन डेटा सेट यूज होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट क्या होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को डेटा का जो बिल्ट-इन डेटा सेट है वो आपको बोलता हूँ, सिस ऑटो क्लियर, ठीक है। और यही हम आज की क्लास में इसी डेटा सेट के साथ हम आज हम प्ले अराउंड करेंगे, सिस ऑटो क्लियर, ठीक है। अगर आप इसे ब्राउज करो तो अगेन आई विल बी नीडिंग योर आउटपुट गाइस। अगर आप इसे ब्राउज करो तो ये आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट रो टेलिंग यू, व्हाट इज द फर्स्ट रो टेलिंग यू, व्हाट इज द फर्स्ट रो इन द डेटा इज टेलिंग यू। ओके, वेरिएबल्स के नेम के बाद वाली जो रो है जिसमें वैल्यूज आ रही हैं, जो हमारी ये रो है एएमसी कॉनकॉर्ड वाली, व्हाट इज दिस टेलिंग यू, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन अबाउट, ये किस बारे में इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज दिस टेलिंग मी अबाउट, व्हाट इज दिस टेलिंग मी अबाउट। ये जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है ये हमें किस चीज के बारे में बता रही है, इज टेलिंग मी अबाउट व्हाट विच थिंग, ये प्राइस एमपीजी ये क्या चीजें हैं, किसके बारे में मुझे बता रही है, किसकी प्राइस है, क्या चीजें हैं ये। Mariam and Muniba has tried to answer the question. What about the rest of the class? So it's probably a car, so the characteristics of it. Yeah. So basically, this is telling me about the car. Okay. So again, if I ask you this question in the quiz, so you will be answering it. It's a car level data set, which is telling you a price at one point in time. ठीक है, यानी ये AMC कॉनकॉर्ड की मुझे प्राइस बता रहा है किस साल की, जनाब ये बता रहे हैं 1978 के अंदर उसकी प्राइस क्या थी, ठीक है। सो इट्स अ कार लेवल डेटा सेट व्हिच इज टेलिंग यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट क्या होता है, उसमें आपको सिर्फ एक हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको एक जगह पर चलती है, तो इट्स टेलिंग यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार एट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट। दूसरा आपका डेटा सेट होता है टाइम सीरीज डेटा सेट, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा सेट क्या होता है, सिस एस पी 500 क्लियर, ठीक है। अब मैं अगर इसको ब्राउज करूं तो ये मुझे क्या बता रहा है, बेसिकली S&P 500 क्या है, बेसिकली स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये जैसे हमारा KC 100 है वैसे S&P 500 भी एक इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें 500 स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये मुझे क्या बता रहे हैं, व्हाट इज दिस डेटा सेट टेलिंग मी अबाउट, The trend of stocks over time. इज अ ट्रेंड ऑफ स्टॉक्स ओवर टाइम, ठीक है। तो इट्स टेलिंग मी द ट्रेंड्स ऑफ स्टॉक, लेकिन ये सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बता रहा है, ठीक है। दिस इज टेलिंग मी अबाउट ओनली वन स्टॉक व्हिच इज S&P 500, यानी S&P 500 को बता रहा है कि जनाब 2 जनवरी को क्या हुआ, फिर 3 जनवरी को क्या हुआ, फिर 4 जनवरी को क्या हुआ, तो दैट्स व्हाट इज टेलिंग मी। तो लिहाजा इस तरह से उसने हमें एक पूरा ट्रेंड दे दिया उसने कि S&P 500 का जो है ट्रेंड क्या जाता है, मुझे बोला ट्रेंड बता रहे हैं हमें, तो हमारा ट्रेंड हमारे सामने आ गया, S&P 500 का ट्रेंड हमारे सामने, ठीक है। इसी तरह आखिरी डेटा सेट होता है पैनल डेटा सेट, ठीक है। पैनल डेटा सेट क्या होता है, पैनल डेटा सेट यार ऐसा होता है कि फर्स्ट को जैसे अगर इसमें S&P 500 डाल दूं और साथ KC भी डाल दूं और इसमें दो चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि S&P 500 का ट्रेंड क्या जा रहा है और KC का ट्रेंड क्या जा रहा है, तो वो पैनल डेटा सेट बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए एक डेटा सेट जो है पैनल का भी आप लोगों के सामने अपलोड किया हुआ है। आई जस्ट नीड टू गो इनटू दैट फोल्डर टू ओपन इट फॉर ऑल ऑफ यू। डेटा सेट्स TTA आर्थर, यस। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे आके हम CD कर लेते हैं और CD करके हम आपको ये डेटा सेट भी दिखा देते हैं। CD Dropbox and then use Beatles पैनल। अगर मैं इसको आपको सामने लोड करूँ, यूज बीटल्स पैनल कॉमा क्लियर, ठीक है। तो यूज बीटल्स पैनल करूँ और अगर मैं ब्राउज करूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है, बड़ा छोटा पैनल डेटा सेट है, लेकिन ये बता रहा है एक पर्सन 1968 में उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या थी उसकी, और उसकी एज कितनी थी। फिर 1969 में उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या हुई और उसकी एज क्या थी। इस तरह से डेटा आगे चल रहा है, ठीक है। ऐसा पर्सन 2 भी शुरू हो जाएगा, पर्सन 2 का डेटा आया, पर्सन 3 का आया, फिर पर्सन 4 का आया, ठीक है। तो पैनल डेटा सेट क्या करता है, इट्स टेलिंग यू अबाउट टू थिंग्स, ठीक है। एक तो उस इंडिविजुअल के बारे में, यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की ओवर टाइम ऑब्जर्वेशन, ओवर द टाइम क्या चल रहा है, यानी इट्स टेलिंग यू अबाउट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम, ठीक है। तो पैनल डेटा सेट आपको ये बताता है आपको। तो S&P जो है, इट इट्स टेलिंग अबाउट द ट्रेंड, द टाइम ट्रेंड of one thing, ठीक है। in this case S&P 500। पैनल में क्या होता है, पैनल में ये चीज होती है, पैनल बेसिकली पैनल डेटा सेट जो होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा सेट, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल टाइम, यानी अगर आपकी वही गाड़ियां जो आपने सीसी ऑटो में देखी थी, अगर उनकी ऑब्जर्वेशन आपको हर साल के मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, वही गाड़ियां सबके साथ, तो वो पैनल डेटा सेट बन जाएगा। So these are the 3 data sets that we are always using for our analysis, ठीक है। For today's class, for today's lab, we will be using SysUse Auto। तो SysUse Auto कॉमा क्लियर, ठीक है। ये हमारा डेटा दोबारा ओपन कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर है। डेटा सेट्स की जो टाइप्स हैं आपको समझ आ गई हैं। आई होप कि आपने वोल्ड्रिज के अंदर भी क्विज के दौरान भी आप लोगों को ये चीज़ें आपको टकरी होंगी दोबारा। बट इज दिस क्लियर टू यू, जो डेटा सेट्स की टाइप है? ओके, थैंक यू जहांगीर। अच्छा जी, अब हम आते हैं जनरेटिंग वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है। हमें वी नीड टू लर्न हाउ टू जनरेट वेरिएबल्स इन स्टेटा। जनरेटिंग के अंदर हमारे पास देयर आर टू वेज टू जनरेट वेरिएबल्स, देयर आर टू वेज to generate variables. One is theegen way and the other is the gen way, ठीक है। gen जेनेरिक का होता है, ठीक है। gen जो होता है वो जेनेरिक होता है, ठीक है। egen कमांड होती है, क्योंकि इसको egen way बोला है, egen कमांड लिख देते हैं। आई थिंक दिस लुक्स मोर प्रोफेशनल। और दूसरा होता है gen कमांड, ठीक है। आपके देयर आर टू वेज टू जनरेट वेरिएबल्स, आपने egen को बहुत देखा है, ठीक है। अब हम gen कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। ईजेन कमांड में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वेरिएबल्स को आपस में, ठीक है। ईजेन के अंदर आप अगर मैं आपसे कहूँ यार, ये लेट सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रैक्टिस, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे ना माइल्स पर गैलन जो है इसको डिवाइड कर दो आप हेड ट्रंक के साथ, ठीक है, तो आप ईजेन में नहीं कर सकते वाला काम, आपको ये काम जो है उसमें करना पड़ेगा। यू नीड टू डू दिस इन बाय यूजिंग जेन, ठीक है। तो जेन भी उसी तरह चलता है जैसे ई जेन चलता है, ठीक है। जेन, ठीक है, जेन जेन में है, और जेन में आके अगर हमें एमटीवी हमें रेशियो लेनी है, ठीक है, रेशियो लेनी है हमें एमपीजी की ओवर लेंथ, ठीक है। तो एमपीजी डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। वी नीड टू टेक अ रेशियो ऑफ एमपीजी टू लेंथ, वी कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। ई जेन ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारी अपनी कस्टमाइजेबल नीड्स हैं हमारी। जहांगीर,
सर egen और gen दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स जनरेट करते हैं या स्ट्रिंग भी दैट्स अ आप वेरी गुड कर क्वेश्चन, सकते हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ईजेन सिर्फ न्यूमेरिकल वेरिएबल कर सकते हैं। ईजेन जो है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल कर सकता है। जेन जो है, जेन कैन क्रिएट बोथ वेरिएबल्स, ठीक है। ईजेन कैन ओनली क्रिएट, यार ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जंगीर, थैंक यू फॉर दिस। कैन ओनली क्रिएट numerical variables, while this gen command, it can create both variable, can create both numerical and string variables, ठीक है। it can create both। अब यहाँ पे हमने रेशियो क्रिएट किया हमने, ठीक है। अब लेट्स सपोज जैसे अभी जो है इसने एक सवाल पूछा था जहांगीर ने, कि जिसमें हमने रेशियो, ये अपने न्यूमेरिकल वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। दिस इज वी क्रिएटेड अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, ठीक है। what if we want to create a string variable, what if we want to get a string variable? So for string variable we can do it, अच्छा जी फर्ज करो एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम क्या लेके आते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं जेन, और हम उसका नाम रख देते हैं जहांगीर के नाम रख देते हैं, ठीक है, जहांगीर, ठीक है। अगर मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करना है जो कि सिर्फ जो सिर्फ बोल सके यस, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है, मैं उसको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लूंगा यस, ठीक है। तो ये जहांगीर के नाम से एक वेरिएबल स्टोर करेगा और उसको यस कर देगा। मैं यहाँ ब्राउज करके आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे इफ आई टाइप जहांगीर यस, तो वेरिएबल जनरेट कर देगा यहाँ पे जहांगीर यस। इसने जहांगीर का यहाँ पे वेरिएबल जनरेट कर दिया इसने, ठीक है। अगेन अगेन दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल वेरिएबल, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप, हाँ यस नहीं ड्रॉप करना, सॉरी, जहांगीर ड्रॉप करना, ठीक है। अब फर्ज करो चलो ये मैं आप लोगों के साथ एक्सेस करते हैं, सब जाग जाएं, पहले पहले आप सब जाग जाएं, ठीक है। हमें एक डमी वेरिएबल जनरेट करना है, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट अ डमी वेरिएबल, ठीक है, विच शुड बी न्यूमेरिक and it should be one, and it should be one if the value is greater than the summary, if the value is greater than the average price, and it should be zero if the price is less than the average price of car, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है, सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है, वी नीड टू नो द एवरेज ऑफ द कार, वी नीड टू नो द एवरेज प्राइस। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज प्राइस? सर आप gen कमांड के थ्रू आप प्राइस डिवाइडेड बाय व्हाटएवर द नंबर इज जिसकी भी आप एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा अभी लिख लेते हैं ताकि ना हमें आसानी रहे, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ डमी वेरिएबल which would be one if the price of the individual car, if the price of the individual car is greater than the average price of the car in our data set, and it will be zero otherwise, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? हमारा पहला स्टेप हम क्या रखें? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? इस डमी को बनाने के लिए हमें पहला स्टेप की क्या जरूरत है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू? हम सर एवरेज निकालेंगे, आप एवरेज एक निकालेंगे, वेरिएबल एवरेज या निकालेंगे। कैसे वेरिएबल एवरेज? के थ्रू। एवरेज निकालेंगे, बिल्कुल सही चीज आपने की। गाइस मुझे एक सेकंड देना, मेरी लाइट चली गई है। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड। गाइस मेरी लाइट चली गई है, मुझे एक सेकंड दो। जी
क्या बोला था अभी आपने? हम जहांगीर ने बोला हम सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे निकालें प्राइस की? we will calculate the average first. We will calculate the average first. Guys, can you hear me? जी सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल, we will calculate the average first. ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम लोग आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात आप कुछ कह रहे थे, मैं लाइट चली के बीच में कर रहा था। आप जंगे कहते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाओगे आप। जी सर, मैं कह रहा था कि जेन कमांड के थ्रू, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट जेन कमांड के थ्रू आप प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके एवरेज निकाल नहीं, सकते हो। प्राइस तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, प्राइस तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है डेटा के अंदर, तो वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लेकिन प्राइस हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द प्राइस, दैट्स इट। ठीक है, यानी हमें इस प्राइस की हमें एवरेज लेनी है। तो देयर आर टू वेज, वन वे वुड बी इज टू टेक द टू वेज, वन वे इज सम प्राइस, ये आपको बता रहे हैं एवरेज प्राइस कितनी है। ठीक है, एंड द सेकेंड वे वुड बी ईजन वे is Eigen price average is equal to mean of price। आप इनमें से दोनों से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। आपने प्राइस निकाल ली, ठीक है, ये एवरेज प्राइस है। अब आपने जेन कमांड यूज करनी है। ठीक है, यू नो व्हाट योर एवरेज प्राइस इज, व्हिच इज दिस 616.6165.257। ठीक है, तो what you will do is you will now calculate second step variable generation। let me इसको मैं छोटा करूं थोड़ा सा। वेरिएबल जनरेशन के अंदर आपने क्या किया, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पर आके सिंपल अपना सम नहीं सर, अब हम जेन करेंगे, जेन। ठीक है, और डमी वेरिएबल का नाम रख देते हैं एक्सपेंसिव। ठीक है, डमी वेरिएबल का नाम रख देते हैं एक्सपेंसिव। ठीक है, जेन एक्सपेंसिव इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इज इक्वल टू के आगे? एक्सपेंसिव की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इफ सर इफ अगर जो मीन की वैल्यू थी उससे इफ ग्रेटर देन 6165.257, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 6165.257। ठीक है, एक यूज आप लाइन लिख सकते हो, और what you can do is you can do gen expensive is equal to 1 if price is greater than price average। they both are doing the same thing। आप इनमें से सिर्फ एक कमांड यूज कर सकते हो, दोनों कमांड से एक यूज कर लेना। ठीक है, which command should I use? आपकी कोई कॉल है, दोनों ठीक है, दोनों से कौन सी कमांड यूज करूं? सर आई डोंट नो द आंसर टू योर क्वेश्चन, लेकिन मेरा दूसरा सवाल था कि इसमें ये ऑटोमेटिकली फिर जीरो दे देगा, या डू वी हैव टू स्पेसिफाई फर्दर के? we have to specify it further। अच्छा, राइट। ऑल्सो आप जो आप वो प्राइस एवरेज का पूछ रहे थे, आई गेस जो सेकंड वाला लिखा है वो आई थिंक इट्स बेटर, बिकॉज इफ यू मेक मोर एंट्रीज इनटू योर डेटा सेट देन इट विल लाइक वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, यू वोंट हैव टू चेंज 6165। Exactly, this is what I wanted to hear। ठीक है, the second one is more efficient, this one is more efficient, as it's capturing the possibility of change in price average। ठीक है, yes, so we will run not efficient। ठीक है, नॉट एफिशिएंट, एंड दिस वन इज मोर एफिशिएंट। वो हम एक और तरीका भी अब देखेंगे, अभी हम जब लोकल्स हम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे हम सम प्राइस के थ्रू भी काम कर सकते थे, अभी हमने इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सम प्राइस के थ्रू भी एक एफिशिएंट तरीका है करने का, बजाय इसके हम एक वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल को अपनी मेमोरी से हमारे ऑक्यूपाई करें,
ये भी इतना एफिशिएंट तरीका नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। आपकी मेमोरी काफ़ी खाई जाती है, यानी आपने एक वेरिएबल जनरेट किया, आपका वेरिएबल और आपने कर लिया आपने, तो लिहाजा वी विल आल्सो सी हाउ टू वर्क अराउंड दिस थिंग। तो इसको मैं फिलहाल अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं इस कमांड को चला देता हूँ। तो जेन एक्सपेंसिव प्राइस इज ग्रेटर देन प्राइस एवरेज। अब अगर मैं डेटा को ब्राउज करूँ आपके सामने, तो ये देखिए, तो यहाँ पे प्राइस एवरेज के साथ यहाँ पे 1 लिखाना शुरू हो गया है, लेकिन ये डॉट डॉट भी आ रहे हैं। डॉट का मतलब क्या है कि इस गाड़ी की जो प्राइस है, उस गाड़ी की प्राइस 4082 है, विच इज लेस देन द प्राइस एवरेज। तो दिस इज नॉट, तो यहाँ पे डॉट डॉट आने शुरू हो गए, ठीक है। वी नीड टू चेंज इट टू 0, ठीक है। तो अगर हमें 0 यहाँ पे लेके आने हैं, तो जेन के साथ हमेशा, जेन के साथ हमेशा रिप्लेस कमांड आप यूज करते हैं, ठीक है। जेन एंड रिप्लेस कमांड, ठीक है। रिप्लेस कमांड, रिप्लेस हमेशा जेन के बाद ही यूज होगा, ठीक है। रिप्लेस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू 0। अब 0 वाली कंडीशन क्या थी? 0 वाली कंडीशन क्या है गाइस? रिप्लेस एक्सपेंसिव इक्वल टू 0 इफ Sir, if less than or equal to price price average, is I less than guess. or equal to price average, yes, ठीक है। ऑलवेज राइट दिस होल कंडीशन, ठीक है। रिप्लेस एक्सपेंसिव इक्वल टू 0 इफ प्राइस इज लेस देन इक्वल टू प्राइस एवरेज, ठीक है। तो अब देखें जीरोस आ गई यहाँ पे सारी, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक डमी वेरिएबल जनरेट कर लिया, ठीक है। आपने एक डमी वेरिएबल जनरेट किया और आपने उस तरह से उसमें निकाल लिया। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी कार्स आर एक्सपेंसिव एंड हाउ मेनी कार्स आर चीप, ठीक है, व्हाट विल यू डू? हाउ मेनी कार्स in our data set are expensive as per this criteria, as per this criteria. G, anyone? How many cars in our data set are expensive as per this criteria? Sir, I'm not sure, लेकिन I think अगर आप tab stat लिख के टैब स्टैट करके run कर ले। टैब स्टैट नहीं, टैब स्टैट, हाँ टैब स्टैट पे करके बताओ, टैब स्टैट पे क्या करेंगे? टैब स्टैट बस tab stat लिख के आप वेरिएबल का नाम लिख दें जो आपने ओके। अभी क्रिएट किया है, नाउ लेट्स डू या दिस। फिर काउंट अगर खाली काउंट लिखे काउंट इन वेरिएबल नेम, आई एम नॉट श्योर अगर होता है तो। हाँ मरियम कह रही है काउंट इफ करके। मरियम आगे क्या लिखूं मैं? काउंट इफ आगे क्या लिखूं? एक्सपेंसिव सिंगल लिखूं, सिंगल जीरो, यानी सिंगल इक्वल है, डबल इक्वल ही आना चाहिए मरियम। अगर सिंगल करेंगे तो क्या होगा? वो एरर दे देगा, ठीक है। तो लिहाजा डबल इक्वल, एक तरीका तो ये है। बाय द वे उसका तरीका भी ठीक था। देयर आर 52 कार्स, ठीक है। देयर आर 52 कार्स व्हिच आर एक्सपेंसिव, ठीक है। देयर आर 52 कार्स व्हिच आर एक्सपेंसिव। बाय द वे ये जो यहाँ पे जहांगीर ने हमें ये दिया है 29.723, इसको कैसे, ये क्या है? हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस थिंग? जहांगीर ने हमें टैब सेट एक्सपेंसिव करके लिखवाया था, इसका मतलब क्या है? ये क्या बता रहा है? 29.72973, व्हाट इज दिस टेलिंग अस? Sir, I think it's a proportion of It's the the proportion. total It's the cars. proportion. So which means that 29% of the cars or our data set are expensive. ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसको हम कर देते हैं काउंट इफ एक्सपेंसिव किया हमने और इस तरह से हमने निकाल लिया। एक और तरीका हो सकता है, मैं आपसे पूछूं अच्छा बताएं कितनी कार चीप है कितनी वो है एक्सपेंसिव है, तो आप सिंपल टैब एक्सपेंसिव लिख दो। तो ये आपको बताएगा देयर आर 52 कार्स व्हिच आर चीप एंड देयर आर 22 कार्स व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। बाय द वे एक्सपेंसिव 0 करके जो है हमने जो यहाँ पे नंबर निकाले वो हमने निकाले वो गाड़ी को जो चीप नहीं, जो चीप है, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है। 1 उन गाड़ी को जो एक्सपेंसिव कार्स है, ठीक है। तो अगेन ये 29.73 जो आपने यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यही जहांगीर ने भी निकलवाया था हमसे यहाँ पर टैब सेट करके, वो प्रोपोर्शन से दे दी थी। यहाँ पे स्टेटा उसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है उस प्रोपोर्शन को, ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस टू रीड। इज दैट क्लियर? Sir, I had a question.
जब आप डमी वेरिएबल जनरेट कर रहे होते हो तो कैन यू राइट मोर देन वन कंडीशन, एंड इफ सो देन हाउ? अगर आपको या प्राइस एवरेज के साथ कोई और भी वैल्यूबल की कंडीशन बिल्कुल। ऐड करनी तो हो? सिंपल अब फर्ज करो जैसे मैं इसी एक्सपेंसिव को मैं लेके आता हूँ, ठीक है, इसी वेरिएबल को लेके आए, सॉरी कंट्रोल, आई जस्ट वांटेड टू कंट्रोल सी, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं कहता हूँ कि सॉरी सॉरी की कमांड है भाई, नीचे आए और यहाँ पे आके मैंने इसको बोला ये, ठीक है, मैं कहता हूँ यार एक वेरिएबल जनरेट करो एक्सपेंसिव एंड लेंथी, ठीक है, इफ प्राइस इज दिस, और साथ मुझे एक और चाहिए कि लेंथ जो है, एंड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंड यूज कर सकते हो, आप एंड यूज कर सकते हो, और आप या फिर आप और यूज कर सकते हो। थ्री टाइप्स ऑफ गेट, वन इज द एंड गेट, द और गेट एंड द नॉट गेट, ठीक है। द एंड गेट क्या होता है, एंड गेट के अंदर आपको दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी वन इसको तभी मिलेगा इस वेरिएबल को जब उसकी प्राइस ग्रेटर होगी इससे और लेंथ 10 से ग्रेटर होगी। अगर इसमें से एक कंडीशन में फॉल्स होगी तो उसको वन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एंड से कर सकते हो वाला काम कि मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर आप तीसरी भी लेके हैं तो आप साथ एंड लिखते जाओ, एंड लिखते जाओ या और लिखते जाओ, ठीक है, इट्स योर कॉल। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन जहांगीर? या सर, थैंक यू। ठीक है, टैब एक्सपेंसिव कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं लेके बताना चाह रहा हूँ इससे पहले कि मैं आगे रिग्रेशन टेबल्स की तरफ जाऊँ, वो है यूज ऑफ अंडरस्कोर एन एंड कैपिटल एन। अच्छा, अब आप फर्ज करो अगर आपने ईजेन से मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो मुझे टोटल ऑब्जर्वेशन बता सके कि यानी उस वेरिएबल में टोटल ऑब्जर्वेशन स्टोर हो ईजेन के थ्रू, तो आप कैसे करते थे? आई वांट अ वेरिएबल आई वांट अ वेरिएबल I want a variable that stores the total number of observations in the data set. In a data set. कैसे ईजेन के थ्रू हम कैसे करते थे? ईजेन टोटल इज इक्वल टू, मुनीबा आपने मुझे तरीका बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, if I want the total Sorry, number of sir, I observations, didn't. if I want the total number of observations in if I want to store a variable that stores the total number of observations in a data set, ठीक है, एक वेरिएबल हो जो कि वेरिएबल साहब बता सके टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आप ईजेन का कौन सा फंक्शन यूज करती थी आप? ईजेन का, लेट मी गिव यू ईच एंड एवरी ऑप्शन, ईजेन फंक्शंस की ऑप्शन है, ईजेन फंक्शंस ऑप्शन, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इफ वी वांट टू कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? ईजेन फंक्शंस की ऑप्शन में आपको देता हूँ कि काउंट, यस, थैंक यू, ठीक है। हम यहाँ पे काउंट अगर कर दें तो काउंट काउंट और आगे सिंपल मेक लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, काउंट मेक, तो ये आपको टोटल ऑब्जर्वेशन दे देगा। टोटल ऑब्जर्वेशन ऐसे कितनी है आपकी, फिर 74 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो काउंट टोटल रिक्वेस्ट 74 आ गई, ठीक है। अब अगर ये काम मुझे जैन से करना हो, अगर ये काम मुझे जैन से करना हो तो मैं जैन से कैसे करूँगा? जैन के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप दिस टोटल, ड्रॉप टोटल एंड देन द gen way, the gen way, the gen way is egen, gen total is equal to underscore n, ठीक है, total is equal to underscore n, ठीक है, total underscore n। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, ये कैपिटल एन जो होता है वो टोटल ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे टोटल अंडरस्कोर एन करूंगा तो ये ऐसे करेगा, सॉरी मैंने ड्रॉप नहीं किया था, आई नीड टू ड्रॉप दिस फर्स्ट, टोटल अंडरस्कोर एन, ठीक है। अब अगर मैं ब्राउज करता हूँ इसे तो देखो वही 74 वापस से बाहर आ गया। एक ईजेन का तरीका था, ये जैन का तरीका, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स अगेन ड्रॉप दिस टोटल। नाउ आई वांट टू now I want to
compute the, now I want to make a variable that stores the number of observations, number of cars by domestic foreign type. ईजन से कैसे करूंगा इसमें से? अगर मुझे ईजन से करना हो ये काम, अगेन आई विल बी यूजिंग काउंट, लेकिन मैं ईजन टोटल में क्या लिखूंगा? ईजन टोटल इज इक्वल टू काउंट कॉमा कॉमा मेक ही कर दें। चलिए आगे मैं क्या लिखूंगा इसके? अगर मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल हो जो मुझे बता सके कि टोटल कार्स जो है वो कितनी है बाय डोमेस्टिक फॉरेन, यानी ये टैब फॉरेन वाला आउटपुट जो है, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, टैब फॉरेन किया तो उसमें बताया कि 52 डोमेस्टिक कार्स एंड 22 फॉरेन कार्स। ठीक है, अब मुझे यही चीज एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस कमांड में, ईज एंड टोटल के साथ? टोटल में काउंट मेक के साथ में आगे क्या लिखूं, क्या ऑप्शन स्पेसिफाई करूं? रिमेंबर द स्कूल वाली एग्जांपल, स्कूल वाली एग्जांपल जब बच्चे हम काउंट कर रहे थे वहाँ पे स्कूल वाले ऑप्शन में हम क्या करते थे हम लोग? तो बेसिकली व्हाट आई वांट इज, जहांगीर, आई वांट दिस थिंग, आई वांट के डोमेस्टिक कार, आप देखो टैब फॉरेन किया तो यहाँ पे आगे डोमेस्टिक 52 कार्स एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन 22 कार्स हैं। मैं चाह ये रहा हूँ कि एक वेरिएबल में इंफॉर्मेशन स्टोर हो कि देयर आर टोटल, यानी डोमेस्टिक कार्स के सामने बार बार 52 52 52 लिखा हुआ आ रहा हो और फॉरेन के सामने 22 22 22 लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है, बाय फॉरेन, बाय फॉरेन। ठीक है, ये ईजन का तरीका था। ईजन ने आपने क्या किया, ईजन में उसने टोटल काउंट मेक और बाय फॉरेन कर दिया, और अगर मैं इसको ब्राउज करूंगा तो ये जो आप देख रहे हैं 52 और टोटल डोमेस्टिक, जितने भी डोमेस्टिक कार्स होंगे उसके सामने 52 लिखा हुआ आ रहा होगा, और जितना भी फॉरेन करेंगे तो उसका 22 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो लेट्स सी, अब ये देखो जितनी भी डोमेस्टिक कार्स हैं उनके सामने 52 लिखा हुआ आगे, और जितनी भी फॉरेन कार्स हैं उनके सामने 22 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अगर यही तरीका, अगर यही चीज हमें करनी हो यूजिंग जेन, ठीक है, यूजिंग जेन करनी है तो क्या होगा? ड्रॉप टोटल, now let's try the gen way। इसी कमांड को वापस से पकड़ूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा जेन टोटल, लेकिन इसमें एक और चीज साथ लिखनी है, वो है बाय सॉर्ट। ठीक है, बाय सॉर्ट, बाय अब बी बाय एस लिख दो तो ठीक है, ठीक है, बाय या बाय सॉर्ट पूरा लिख दो, बाय सॉर्ट फॉरेन और साथ आगे ये वाली कमांड। तो ये क्या करेगा, ये पहले डोमेस्टिक पकड़ेगा, डोमेस्टिक पकड़ के पहले सारी डोमेस्टिक कार्स को काउंट कर लेगा, उसके सामने 52 लिख देगा, फिर ये डोमेस्टिक को फिर फॉरेन को पकड़ेगा इसके अंदर, और फिर उसके सामने उसके काउंट करेगा और उनके सामने वेरिएबल्स वाले लिख देगा। ठीक है, ये ईजन वाला तरीका था, ये जेन वाला तरीका। ठीक है, और ये देखो मैंने ये किया, दोबारा आप वापस आके देखते तो देखो वही चीज वापस आ गई, 52 52 52 एंड देन फॉरेन। तो कैपिटल एन का फायदा बेसिकली ये है। इसका और फायदा बेसिकली क्या है जनाब? इसका फायदा बेसिकली ये है कि अगर आप इसके सामने लेट्स सपोज आप ऑब्जर्वेशन ऐड करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप चाहते हो यार +1 आ जाए, ऑब्जर्वेशन में नंबर ऐड हो जाए, तो काउंट में ये वाली ऑप्शन आपको नहीं मिल सकती थी। आप यहाँ +1 आप करोगे तो आपको ईजन बोलेगा दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये +1 भी लिख दोगे तो स्टेटा विल से इट्स टोटली फाइन, यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये था अंडरस्कोर एन जो होता है वो टोटल वैल्यूज को काउंट करता है, टोटल ऑब्जर्वेशन को काउंट करता है। जो स्मॉल एन है वो आपका इंडेक्स है। लेट्स सपोज जैसे आपका ये जो ऑब्जर्वेशन चल रही है ना, ये वाली 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इसके ऑब्जर्वेशन अगर आप चाहते हो कि ऑब्जर्वेशन आ जाए यहाँ पर, ठीक है, अंडरस्कोर एन काउंट दी टोटल ऑब्जर्वेशंस while small n counts gives us the index। ठीक है, अब अगर लेट्स मैं एक इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, जेन इंडेक्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर एन। ठीक है, जेन इंडेक्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर एन, तो ये क्या करेगा, यहाँ देखें 1 2 1 1 2 3 1 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो इसे इंडेक्स बना दी। कभी कभार इंडेक्स बनाने में हमारे लिए काफी यूजफुल होता है जब हमें कभी इफ कंडीशनिंग करनी हो। ठीक है, लेट्स सपोज डेटा का मिड पॉइंट कहाँ पर है, डेटा का मिड पॉइंट जो है आपकी ऑब्जर्वेशन टोटल जो है वो यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपकी आती है मिड पॉइंट ऑब्जर्वेशन 74 है। ठीक है, तो आपका डेटा का मिड पॉइंट कहाँ पर है, इट विल टेक यू सम टाइम टू फिगर दिस थिंग आउट। ठीक है, तो आपने अगर मिड पॉइंट निकालना हो डेटा का तो आप इंडेक्स निकालो,
इंडेक्स कुछ भी नहीं बता रहा। लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे डेटा का आई नीड टू सी द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, ठीक है। आई नीड टू सी, लेट्स से आई नीड टू सी द मिड पॉइंट ऑफ डेटा, आई नीड टू सी द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। अगर आपने मिड पॉइंट डेटा का देखना हो, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे इंडेक्स लेके आ जाओ, और इंडेक्स का आप यहाँ पे अगर आप एवरेज करते हो तो सम इंडेक्स करोगे तो ये आपको मिड पॉइंट बता देगा। मिड पॉइंट आपका जो डेटा है वो 37.5 जहाँ पे भी है, सॉरी इसको मीडियन दिखना चाहिए डिटेल के साथ। हमारा जो मिड पॉइंट है वो है जनाब 37.5। तो बेसिकली हम मिड पॉइंट देख सकते हैं। इसका किस तरह से इसको और दिया जाए। हाँ, एक चीज़ और, इसका फ़ायदा क्या है, इंडेक्स का फ़ायदा क्या है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ मुझे ऑब्जर्वेशन देखनी है, मुझे आई नीड टू सी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन एंड 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आप ब्राउज करके इन करते और यहाँ पे फर्स्ट लिखते और साथ कॉमा लिखते तो वो उससे नहीं करना था। लेकिन अगर आप इसको कहोगे बी आर इफ इंडेक्स, बी आर इफ इन लिस्ट, इन लिस्ट क्या करेगा, इन लिस्ट में इंडेक्स लिखो और आपको कौन कौन से ऑब्जर्वेशन दिखने आपको दिखाएगा 1, 10th, 20, ठीक है। तो ये अब आपको 3 ऑब्जर्वेशन सिखा रहे हैं, ठीक है। आप इन करके वो नहीं देख सकते थे, ब्राउज इन करके 1, 3, 10 दिखा दो, ठीक है। इंडेक्स ने आपको ये काम आपके लिए इजी कर दिया, ठीक है। ये मैं मिड पॉइंट वाली चीज को यहाँ से निकाल दूं बिकॉज दिस विल कंफ्यूज। तो यहाँ पे तो करते हैं आई नीड टू सी द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। यही आप लिस्ट करके भी आप यहाँ पे सबको दिखा सकते थे, लिस्ट इफ इंडेक्स दिस। तो आपको यहाँ पे डेटा भी आपको जो यहाँ पे इंडेक्स दिखाएगा वो सिर्फ इन तीनों को दिखाएगा, 1, 10 और 23 का, ठीक है। डज दैट मेक सेंस जहांगीर और rest of the class as well? Okay. Now, प्रैक्टिस टेस्ट को तो बंद कर देते हैं। अच्छा जी, हमने ये कर लिया। अब हमारा आता है जनाब वेरिएबल्स की रिलेशनशिप देखने का, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। जब भी इकोनोमेट्रिक्स की हम बात करेंगे तो हमेशा हम रिलेशंस हम हमेशा ये बात करेंगे कि वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग सम ऑब्जर्वेशंस, वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग द वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेट्स सपोज अगर आपको देखना है प्राइस की और माइल्स पर गैलन में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग आवर डेटा। So we are interested in observing the relationship between price and MPG, ठीक है। Tools at our disposal, ठीक है। सबसे पहला टूल आपका क्या है जनाब? सबसे पहला टूल आपके पास है आपका कोवेरियंस। सेकंड टूल है आपके पास कोरिलेशन। थर्ड टूल है आपके पास स्कैटर प्लॉट, एंड द लास्ट टूल इज दिस रिग्रेशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोवेरियंस थिंग, ठीक है। स्टेटा के अंदर अगर आप कोवेरियंस देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स, so what you need to do is you need to type use the command core command, ठीक है। you can write correlate full या फिर आप कोड लिख दो, ठीक है। या तो कोरिलेट लिख दो या कोड लिख दो, इट्स योर कॉल, ठीक है। कोरिलेट लिख लेते हैं, कोरिलेट प्राइस एमपीजी, और साथ यहाँ लिख दो कोव। कोव स्टैंड्स फॉर कोवेरियंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्प आके लिखूँ कोरिलेट, तो ये मुझे सारी बात बता देगा, ठीक है। कोरिलेट यहाँ पे देखो जो ये नीचे ये लाइन लिखी हुई आ रही है, ये पार्ट इसके अंडरलाइन लिखी हुई है, तो आपका मतलब है कि स्टेटा में अगर आप कोड लिख दोगे तो उसको समझ आ जाएगी कि आप कोवेरियंस यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कोर और साथ उसने यहाँ पे ऑप्शन दी हुई थी, सॉरी मैं ऑप्शन दिखाने के लिए आया था। ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपका कोवेरियंस के ऑप्शन है कॉमा सी। आप कोवेरियंस भी लिख सकते हो, आप कॉफ भी लिख सकते हो, इट्स योर। तो लेट्स
do this thing. Correlate covariance MPG car. तो ये इसने आपको कोवेरियंस दी है, ठीक है, ये इसने आपको कोवेरियंस दी है, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द कोवेरियंस? What's the problem with covariance, guys? कोवेरियंस में क्या होता है? कोवेरियंस का क्या बड़ा मसला क्या है? ये मुझे बता रहा है कि एमपीजी और प्राइस में there's a negative covariance, but can we say anything how strong or weak this relationship is? Can we say anything about this thing? Covariance, anyone? Covariance? सर आई थिंक कि कोवेरियंस बस जो दोनों की वेरिएंस होती है या डिविएशन इन द डेटा वो उसको कंपेयर करता है, तो आई डोंट थिंक उनकी रिलेशनशिप के बारे में इतना कुछ हमें आइडिया होगा उसको देख के. आई गेस we can infer more from the correlation rather than covariance. Okay. It only tells about the relationship between the variables. It doesn't tell about the strength, about the strength. ठीक है, it doesn't tell about the strength. स्ट्रेंथ के बारे में आपको नहीं बताता ये, ठीक है. उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज कोरिलेशन, ठीक है. कोरिलेशन निकालें, कोरिलेट. मैं सिर्फ कोड लिखूंगा क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया, कोर से हम समझ जाएंगे कोर प्राइस एमपीजी. अब अगर देखते हैं तो प्राइस एमपीजी में क्या कोरिलेशन आ रही है गाइस? क्या कोरिलेशन आई है यहाँ पर? Now can we say about anything about the core के strong है, weak है? Can we say anything about now? -0.4 आई मुनीबा, बिल्कुल ठीक है. Is it weak or strong relationship? It's a weak thing, ठीक है, it's a weak. मैं सबके लिए यहाँ पे एक बेंचमार्क लिखता हुआ जाऊँ, ठीक है, ताकि आप सबको ये चीज़ याद रहे. ओके जनाब. कोर, बाय द वे गाइस, हम थोड़ा सा टाइम से ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो यू हैव टू बेयर अप विद मी फॉर अ मोमेंट, ठीक है. कोरिलेशन, कोर, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे बेंचमार्क नहीं चाहता. बेंचमार्क क्या है? इफ एब्सोल्यूट कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है. एब्सोल्यूट कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ, यानी नेगेटिव भी अगर 0.5 से बड़ी है, सॉरी नेगेटिव 0.5 से कम है अगर, यानी 0.6 0.7, ठीक है. इफ एब्सोल्यूट कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 0.5, इट्स मींस अ स्ट्रांग रिलेशनशिप, इट्स अ स्ट्रांग रिलेशन. इसी तरह अगर एब्सोल्यूट कोरिलेशन is less than or equal to 0.5, we will say it's a weak relation, ठीक है. It's a weak relation. तो ये कोरिलेशन का मसला था, ये कोरिलेशन है. लेकिन कोरिलेशन में एक what's wrong with correlation? कोरिलेशन का क्या मसला है? एक और ये ठीक है, हमने कोरिलेशन हमने निकाल ली, लेकिन कोरिलेशन का मसला क्या है? What's wrong with correlation? It's not causation. Yes, one thing, it's not causation. What's the other problem? Only tells about the linear relationship, ठीक है. It can only tell us about the linear relationship. In other words, we can only use the linear, we can only use the correlation, we can only use the correlation if the relationship between
the variable is linear. ठीक है? If the relation between the variables is linear, how can we check now? How can we check if the relationship is linear or not? How can we check if the relationship is linear or not? रिलेशनशिप को हमें चेक करना, तो व्यवस्था में कोई लीनियर है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? स्कैटर प्लॉट, यस, हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, ठीक है? टू मेक we will be drawing the scatter plot, ठीक है? स्टेटा के अंदर स्कैटर प्लॉट बहुत सिंपल है, आप सिंपल है, यहाँ पे देखें ग्राफ टू वे स्कैटर, ठीक है? आगे वेरिएबल, पहला वेरिएबल आपका आएगा y वेरिएबल एंड द नेक्स्ट वेरिएबल इज प्राइस एमपीजी, ठीक है? ग्राफ टू वे स्कैटर प्राइस एमपीजी, देयर यू गो, यू विल गेट द ग्राफ। ये हमें ग्राफ मिल गया। So what can we infer about this relationship? Can we say it's a linear relationship? Can we say it's a linear relationship? Again, yeah, that's true कि हम पूरा linear कोई भी नहीं होगा, लेकिन can we approximate this relation? Can we approximate क्या linear relationship, यानी हाँ approximate linear ही है ये? Can we say this thing? No, it's too scattered. Yeah, again जहांगीर, हमने वहाँ पे भी correlation में देखा, it's a weak correlation. There's not a strong correlation. लेकिन कह सकते हैं क्योंकि एक लाइन जा सकती है, ठीक है? अगर हमसे एक लाइन गुजारे हम यहाँ पे ग्राफ टू वे स्कैटर और साथ एलफिट में साथ प्राइस और एमपीजी कर दें, तो एक लाइन जो है यहाँ से जा रही है, ओहो एंगल देखेगा एलफिट, ये देखो एक लाइन थोड़ा सा गुजर तो रही है, एक नेगेटिव ट्रेंड तो शो हो रहा है, तो वी अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट लेट्स अज्यूम कि वो एक लीनियर रिलेशनशिप ही है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बिफोर ट्राइंग टू कंप्यूट द कोरिलेशन, ट्राई टू सी द रिलेशनशिप यूजिंग स्कैटर प्लॉट फर्स्ट, ठीक है? इसमें क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप तो नहीं आ गया, फिर नॉन लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं आ गया, अदरवाइज द कोरिलेशन दैट यू कंप्यूटिंग इज विल बी मिसगाइडेड, ठीक है? दैट वोंट बी गिविंग यू एनी करेक्ट आंसर, ठीक है? दैट्स द मेन जिस्ट। अच्छा, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं साइलेंस लाइन को थोड़ा सा कमांड को अलग अलग कर दें, एक लाइन ये है सिंपल स्कैटर प्लॉट, और दूसरा है आपका स्कैटर प्लॉट विथ लीनियर फिट लाइन, ठीक है? अब यहाँ पे आए, इसको आप निकाल दें, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है? ये हमने यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया, और साथ इन टेबल्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ग्राफ एक्सपोर्ट, और यहाँ पे देखो ग्राफ एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन आपके साथ आपको लिख रहा हूँ, और वहाँ पे हमने ऊपर एक आउटपुट दिया हुआ था हमने, ठीक है? ऊपर हमने एक आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे ऊपर हमने सबसे पहले एक आउटपुट हमने शो किया था आउटपुट, तो वहाँ पर हम इस आउटपुट को स्टोर कर देते हैं, ग्राफ एक्सपोर्ट आउटपुट, और इसे कह देते हैं स्कैटर डॉट png एस png प्लेस, और यहाँ पे भी इसको एस png और स्कैटर और साथ एलफिट, तो ये क्या करेगा, ये टेबल्स भी वहां पे मेरे जगह पे स्टोर कर देगा, ठीक है? आई होप यहाँ तक हम क्लियर, अब तक हम जा रहे हैं। नाउ द रिग्रेशन पार्ट इज कमिंग। टाइम फॉर रिग्रेशन। अच्छा, अब अगर मुझे इसी लाइन की, यही लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे शो की है मैंने,
ये वाली लाइन, ठीक है, ये ग्राफ हमने शो की है, हमने अभी इसमें लाइन फिट हमने पास की थी हमने, क्यों मुझे एरर दिया है, फाइल इसको आउटपुट, फिलहाल छोड़, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, बाद में इसको करूँगा, आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम, तो लिहाजा मैं इसको फिलहाल अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ। ठहरा, हाँ अब हो गया, वो मैंने ग्लोबल जनरेट नहीं किया हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, टाइम फॉर रिग्रेशन, ठीक है, और इसी पे हम अपनी क्लास को आज हम एंड करेंगे, रिग्रेशन को, और रिग्रेशन को एक्सपोर्ट के टेबल को एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है गाइस आप सबको? थैंक यू जहांगीर। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और रिग्रेशन रन करते हैं। अभी आपने ये स्कैटर प्लॉट देखा था, ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट मैं दोबारा आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये स्कैटर प्लॉट जिसमें एक लाइन, लीनियर फिट लाइन जा रही है, बेसिकली ये रिग्रेशन होता है, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर हम वी ट्राई टू पास अ लीनियर फिट लाइन, ठीक है, एंड वी ट्राई टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कोरिलेशन आपको सिर्फ बताती है आप इसमें कोरिलेशन कितनी है, इट डजंट टेल यू हाउ वन थिंग कॉजेज द अदर। जैसे कि पहले किसी ने बोला था कि ये कॉजेशन नहीं होती और या फिर एसोसिएशन नहीं बता पाती, ठीक है। अगर आपने कहना हो कि वेरिएबल एसोसिएशन कितनी है तो आप नहीं बता सकते, तो लिहाजा रिग्रेशन के अंदर दिस थिंग विल बी 100। तो यू विल यूज रेग कमांड, रेग प्राइस एंड एमपीजी, ठीक है, रेग प्राइस एमपीजी। रिग्रेशन किया आपने प्राइस को एमपीजी पे, प्राइस इज द वाई वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द एमपीजी इज द एक्स वेरिएबल, ठीक है। इसको हम करते हैं और ये हमारे पास आ गया प्राइस एमपीजी, ठीक है, प्राइस एमपीजी आ गया। क्या कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है इसको? कैन एनीवन इंटरप्रेट दिस थिंग फॉर अस? व्हाट इज दिस -238 इज? इट्स अ बीटा वन, बट जहांगीर, या सर आप कांस्टेंट की बात कर रहे हैं एमपीजी की? एमपीजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, so if you increase the MPG by 1 unit, then Yes, the price will vary by a negative of that is 238.89. possible. So 1 unit increase in MPG is associated with a decrease with a 238 units decrease in price, ठीक है। यानी अगर आपका माइल्स पर गैलन बढ़ता जा रहा है तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी कार की, ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या है, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे 238 जो है वो क्या आता है, ठीक है। तो -238.8943, तो ये उसका माइल्स पर गैलन है, और यही जो बीटा है, यही बीटा आप यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप देख रहे हो, ठीक है। जो माइनस एमपीजी था, ये ग्राफ में यही नेगेटिव रिलेशनशिप की स्लोप इसने बताई है, इस लाइन की स्लोप जो है -238 है, और ये इसका इंटरसेप्ट है कि अगर आपकी माइल्स पर गैलन 0 है तो आपकी गाड़ी की प्राइस क्या होगी, जो कि यहाँ पे जाके मैच कर रही है, यहाँ पर नीचे जाकर बेसिकली वो ये प्राइस, तो यहाँ पे वो लिखना चाह रहे हैं वो प्राइस ये होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इन सब चीज़ों को वो अकाउंट फॉर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, कुछ केसेस होते हैं जो केसेस मैं जल्दी से कवर कर दूँ। देयर आर सम केसेस, देयर आर 4 केसेस, ठीक है। पहला केस होता है लेवल लेवल का, ठीक है, दो बोथ वेरिएबल्स आर इन लेवल फॉर्म, बोथ वेरिएबल्स आर इन लेवल फॉर्म। दूसरा होता है लॉग लेवल, ठीक है, यानी वन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन लॉग फॉर्म, while the independent variable is in level form। और दूसरा जो होता है, और तीसरा जो केस होता है, तीसरा केस हमारा है लेवल और लॉग का, ठीक है। लेवल और लॉग का केस है, आप यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लेवल में होगा
और आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका लॉग फॉर्म में होगा। और लास्ट केस होता है कि जनाब आप लोगों का, इसको हम थोड़ा सा और कर लें क्योंकि ये केसेस इसके सब पार्ट्स हैं। और आखिरी केस होता है लॉग लॉग। हम लॉग क्यों लेते हैं बाय द वे गाइस? व्हाई डू वी ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स इनटू लॉग? Why do we take log? To have the percentage rather than inputs. Yes, to have the percentages rather than the units. Yes. तो we've अगर हमसे पूछेगा यार, अगर हमें छोड़ेंगे यूनिट्स में, क्या बात आप कर रहे हैं, 238 यूनिट्स, पता नहीं क्या बात हो रही है। अगर हमें परसेंटेज में बताएं कि जी प्राइस, अगर एमपीजी चेंज हो जाता तो प्राइस कितनी गिरेगी या इंक्रीज होगी, तो हम इसलिए हम लोग उसको हम लॉग में ले लेते हैं। ठीक है, तो टेक लॉग इन द स्टेटा। ठीक है, लेट्स टेक लॉग जेन लॉग प्राइस, वेरिएबल का नाम रख दिया आपने, और लॉग प्राइस। ठीक है, जेन एमपीजी log mpg, log mpg इज इक्वल टू log mpg। ये क्या कह रहा है? ये प्राइस का लॉग लेके एक वेरिएबल बना रहे लॉग प्राइस के नाम से। तो प्राइस का भी और ऐसा से एमपीजी का भी इसने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो अगर हम इस केस को देखें और हम एक आखिरी केस को देखें, रेग log प्राइस log mpg कंट्रोल डी। अब वो जो प्राइस हमने देखी थी -238, ये था कि 1 यूनिट इंक्रीज इन एमपीजी इज एसोसिएटेड विद associated with 238 यूनिट्स डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ बोलेंगे 1% चेंज इन एमपीजी, 1% चेंज इन एमपीजी इज एसोसिएटेड विद माइनस 0.82% यूनिट्स परसेंट डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी इंटरप्रिटेशन को। 1% increase in MPG is associated with 0.82% decrease in price। ठीक है, परसेंटेजेस में यहाँ पे बात आ जाती है। इस तरह अगर 1% में हो दूसरा, तो उसके बीटास को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, और एक में आप 100 से और एक में आप 100 को बीटा से पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो वो केसेस भी होते हैं। अच्छा जी, आखिरी चीज की तरफ मैं लेके आना चाह रहा हूँ, और वो आखिरी चीज है एक्सपोर्टिंग दीज टेबल्स। एक्सपोर्टिंग द रिग्रेशन रिजल्ट्स into state into word, into word, pdf और excel। ठीक है, आप लोगों में से लोगों को एक कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है ssc install outreg 2। ठीक है, ये वो कमांड है जो आप लोग को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक दफा इंस्टॉल करना। ठीक है, comment it out if it's already installed, if it's already installed। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, लेट्स जस्ट लीव दिस थिंग्स हियर फॉर अ व्हाइल। ठीक है, हम यहाँ तक इसको हम अभी छोड़ देते हैं। और हम लोग अगली क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि अगर हमें अपने रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट करना हो इनटू डिफरेंट टेबल्स, तो हम उसे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डू यू वांट टू डू दिस एट दिस टाइम, और डू यू वांट कि मैं इसको अगली क्लास में कवर करूँ? क्लास का पोल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप सबको? सर मेरा सवाल था, जिस तरह आपने लॉग लेवल मॉडल का बताया, तो लॉग में तो दोनों परसेंटेजेस में ही हमारे पास आते हैं वेरिएबल, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई लॉग लेवल मॉडल बनाया है, तो उसमें जो नॉन लॉग वाली वैल्यू होगी उसको हमें खुद 100 से मल्टीप्लाई करके फिर लेट्स ऐसा करते हैं, ये हमें मल्टीप्लाई करना होगा या जी ऐसा बताएं। करते हैं, इस चीज पे ना अपनी क्लास को एंड करते हैं। जो ये केसेस वाले केसेस हैं, इस पे हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, 1 यूनिट डिक्रीज इन एमपीजी इज एसोसिएटेड, मैं यहाँ पे ना इस पे भी लिख रहा हूँ ताकि जब आप बाद में इस डू फाइल को मैं देखो तो आप लोग में डू फाइल लेना है, इस चीज को समझ सको। इज एसोसिएटेड विद 238 यूनिट्स डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, एक केस हमारे सामने ये हो गया।
ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 1 है, ठीक है। केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 जो है, पहले यहाँ पे जेनेटिंग लॉग वेरिएबल्स कर लें, ठीक है। केस 2 है हमारा लॉग लेवल। अच्छा जी, लॉग पे आते हैं तो यहाँ पे होगा रेग लॉग प्राइस, और यहाँ पे हम सिर्फ कर देंगे लॉग प्राइस को लॉग प्राइस और लॉग सिंपल एमपीजी, ठीक है। जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग में है, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेन इट्स इन एमपीजी, इट्स इन लेवल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ बोलेंगे 1 यूनिट इंक्रीज इन प्राइस, so 1 unit increase in MPG is associated with 3.3% decrease in price. Chanki, does that make sense? Case 3 is level and log. जहांगीर, समझ आ रही है आपको? क्लास में बाकी सबको समझ आ रही है इस चीज़ की? मैंने खुद 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। We will multiply it by 100. We will multiply our beta. We will multiply our beta by 100 on our own, ठीक है। केस 3 लेवल लॉग, जिसमें हम रेग प्राइस लॉग एमपीजी करते हैं, ठीक है। रेग प्राइस लॉग एमपीजी, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 1% increase in MPG is associated with 59.92 units decrease in price, ठीक है। We will divide the beta by 100, ठीक है। ये केस 3 हो गया, और केस 4 सिंपल वही है जिसमें आपका लॉग लॉग हो जाएगा। केस 4 लॉग लॉग, ठीक है। लॉग लॉग, ठीक है। रेग लॉग प्राइस एमपीजी आपने किया, और आपने रेग लॉग प्राइस एमपीजी आपने चला दिया। इसमें आप देखोगे तो वो आप सिंपल बोलोगे 1% इंक्रीज इन एमपीजी, 1% increase in MPG is associated with 0.82% decrease in price, ठीक है। ये हम अगली क्लास में करेंगे। Guys, does that make sense? Now when it's all being done, what will we do? हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एल करेंगे, और यहाँ पे आके अपने आउटपुट वाले में एसेंशियल में आके इसको लोड कर देंगे अपने ट्यूटोरियल 5 को। और ये लैब 4 चल रही है, लैब 5 में ट्यूटोरियल्स को, ट्यूटोरियल 5, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, एंड देन हियर वी विल स्टोर इट। ये सारी जितनी भी हमने काम किया हम इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। और फिर अपने लॉग को हम क्लोज कर देंगे। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay, so let me stop the recording now. I'll see you guys next week with a practice set for this session. Okay. I mean, well, take care, guys. Allah Hafiz.